देखो राजे, ग्राफिकल मेथड ਦਾ हर्ष तू भी सुन ला राजा, काम आऊगा। A manufacturer plans to produce three products and the production department has given the following data। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਕੇ ਐਲ ਐਂਡ टोटल अवेलेबिलिटी दसी है लेबर दी और मटीरियल दी। अवेलेबिलिटी मतलब ये मैक्सिमम चीज मेरे को अवेलेबल है, तो साइन की यूज होता लेस देन इक्वल टू। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਿੰਬਲਸ ਲਗਾ ਲਏ x1 x2 x3। ਸੋ ਕੀ ਆਇਆ 7x1 plus 4x2 plus 8x3 less than equal to 180। एक कंस्ट्रेंट समझ आ गई। सेम वे मटेरियल्स 5x1 plus 5x2 plus 6x3 less than equal to 250। दो कंस्ट्रेंट्स आ गए। फिर सानू दसे तिन्ना दे प्रॉफिट्स, इनू की करना चाहोगे मैक्सिमाइज। मतलब मैक्सिमाइज दैट इज इक्वल टू 6x1 plus 3x2 plus 3x3 5x3। ये भी हो गया। नीचे लाइन पढ़िए की लिखी, कहते suggest an optimum manufacturing plan about a proper mix of product KLN if the manufacturer wants to produce Sparsh, if the manufacturer wants to produce product L at least 2 times of product K। पहला L और K दे नाम दसो, X2 और K X1। कहता manufacturer wants to produce X2 at least 2 times of product X1। X1 दे कम से कम 2 times, दो गुना, कम से कम दो गुना, या बराबर या उस तो ज्यादा 2 times दे। मतलब 2 times ऑफ x1 क्या मतलब इधर 2x1 आ गया, x2 की होगा या उससे बराबर या उस तो ज्यादा, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू। तक की इक्वेशन आई x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1। x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1। बट इधर तो ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ -2x1 plus x2 greater than equal to 0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਹੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕਰਵ ਕਿਦਾਂ ਬਣਦਾ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ x1 plus x2 ਸਮਥਿੰਗ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਕਰਵ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ LPP ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਜਿਹੜੇ MCQs ਆਣੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਆਣੀ ਅਪਵਰਡ ਸਲੋਪ। ठीक है। then x1 x2 x3 greater than equal to 0, that is non negativity constraint। कि ये क्वेश्चन सॉल्व होना या सिर्फ फॉर्मुलेशन ਦਾ ਹੀ ਆ। फॉर्मुलेशन क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल्स ਆ, ਇਹ ग्राफिकल ना सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। एच भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की चीज है थर्ड कंस्ट्रेंट। ठीक है राजा, ओके। ਹੁਣ देखो एडवर्टाइजिंग वाला क्वेश्चन। कहता है advertising agency wishes to reach two types of audiences, that is customers with annual income greater than 15,000, that is target audience A, and customers with annual income less than 15,000, target audience B। दो audience है साड़ी जिन्हां ਨੂੰ ਆਪਾਂ टारगेट करना। ठीक है। the total advertising budget is rupees 2 lakh। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੇਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਸ ਦੇਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਲੱਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ या बराबर। ठीक है। आगे पढ़ो की लिखा, टोटल एडवर्टाइजिंग बजट कहना 2 लाख है। वन प्रोग्राम ऑफ टीवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ₹50,000। वन प्रोग्राम ऑफ रेडियो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ₹20,000। For contract reasons, at least 3 programs ought to be on TV and the number of radio programs must be limited to 5। ध्यान ना दोस्तों की कह रहे हो, at least 3 टीवी वाले programs, at least 3 मतलब कम से कम, या 10 या उस तो ज्यादा। का साइन की लगना ग्रेटर देन इक्वल टू। रेडियो वाला पढ़ो, कहता दैट मस्ट बी लिमिटेड टू 5। लिमिटेड टू 5 मतलब ज्यादा तो ज्यादा इन्ने, तो साइन लगना लेस देन इक्वल टू। साइन केड़ा लगना लेस देन इक्वल टू 5। Surveys indicate that a single TV program reaches 4,50,000 customers in A audience and 80,000 in B audience।
नहीं, मिक्स हो गया। 450 इन ए, 50,000 इन बी, और रेडियो ਦਾ 20,000 in A and 80,000 in B। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮਿਕਸ ਦੱਸੋ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਰੀਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੀਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ 1 x1 ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦੀ x2। ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਰੀਚ ਵਧਾਣੀ ਹੈ। ਰੀਚ ਕਿਦਾਂ, ਟੀਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ, 450 ਔਰ 50, ਯੈਸ অর ਨੋ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ 450 ਏ ਆਡੀਅנס ਦੇ 50,000 ਬੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 5 ਲੱਖ ਕਸਟਮਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਡੀਅנס ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 5 ਲੱਖ ਕਸਟਮਰਸ ਇੱਕ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਨਟੂ x1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 20 ਐਂਡ 80 ਮੀਨਸ 1 ਲੱਖ। ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 20 ਐਂਡ 80 रेडियो एडवर्टाइजमेंट ਨਾਲ 20,000 ए ਆਡੀਅנס ਮਿਲਦੇ, 80,000 ਬੀ ਆਡੀਅנס ਮਿਲਦਾ, ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ 1 ਲੱਖ ਆਡੀਅנס ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ 1 ਲੱਖ ਇਨਟੂ x2। ਔਰ ਇਸ ਰੀਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਐਡ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ, बोलो एक टीवी एड द कॉस्ट 50,000 और एड्स कितनी है x1, सो 50,000 x1 प्लस 20,000 x2। इथों खर्चा समझ आया, बजट की सी 2 लाख, तो लेस देन इक्वल टू 2 लाख। फिर उन्हें नंबर ऑफ एड्स दी कंस्ट्रेंट्स दिते सी कि टीवी एड्स की चाहिए एटलीस्ट 3, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और रेडियो एड्स मैक्सिमम 5, तो लेस देन इक्वल टू 5, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इथों समझ आया कि अगर रीच मैक्सिमाइज करनी तो इस पैटर्न च कीता, और सानू कोई आ चीज मैटर ही नहीं कर रही थी कि ऑडियंस केड़ी, ऑडियंस दे नाम हो गए बस, दैट्स ओके। नीचे भी देखो ऑडियंस इकट्ठी यूज की ਅਸੀਂ, मींस ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਜ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੀ 50,000 20,000 ਐਂਡ 2 ਲੱਖ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਜ਼ੀਰੋਸ 4 ਜ਼ੀਰੋਸ ਗਾਇਬ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ 5x1 plus 2x2 is equal to 20। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ x1 0 ਹੈ ਤਾਂ 2 उधर डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाऊगा x2। अगर x2 0 लिया मतलब इतना पोर्शन गायब था, उधर 5 डिवाइड करूंगा मींस 4 आ जाऊगा x1। समझे हर्ष, आज ही समझ आई कि दिमाग होया। ठीक है, सबनों आंदा इना टेबल। हूं सेकंड इक्वेशन की है, x1 इज इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन x2 इज इक्वल टू 5। बन गए 3 इक्वेशंस। उस तो बाद ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने लिए पहले पॉइंट आया कि साढ़े को 0 10 4 0, मतलब 1 1 की प्लॉटिंग कर लिए। 0 10 आ पॉइंट आया, 4 0 आ वाला पॉइंट आया, दोनों तो फर्स्ट लाइन आ गई। सेकंड की सी x1 इज इक्वल टू 3, x1 इज इक्वल टू 3 था, पूरी लाइन आ गई। जिथे x1 3 है पूरी लाइन आ जाती है। थर्ड की है x2 इज इक्वल टू 5, तो x2 इज इक्वल टू 5 है, पूरी लाइन आ गई। उनकी देखना स्पर्श साइंस, साइंस देखने हैं किस साइड से जाऊंगा। पहली क्वेश्चन है क्या, लेस देन इक्वल टू, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। दूजी ने क्या, ग्रेटर देन अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेस देन टुवर्ड्स ओरिजिन। सो पहले ग्राफ दे टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब इस साइड शेड होना। दूजे ग्राफ दे दूजी लाइन दे अवे फ्रॉम ओरिजिन, तीजी लाइन दे टुवर्ड्स ओरिजिन। तो सानू कॉमन एरिया चाहिए राजे, ਇਹਦੇ नीचे, ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ, ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ, ਆ ਏਰੀਆ ਕਾਮਨ ਆਇਆ। प्लॉटिंग ध्यान ना करनी। सो शेड हो गया, 3 पॉइंट्स आए, ABC ले लें। B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ, A ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2, 1 ਐਂਡ 2, 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੀ ਸੀ, x1 is equal to 3, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ तो 1 फर्स्ट इक्वेशन च पुट करोगे तो x2 की आ जाऊगा 5, 5/2। ठीक है, सो x2 और x1 सानू मिल गए। उत्थे तीनों पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स फिल किते,
मैक्सिमाइज द इक्वेशन x1 x2 x3 तीनों पॉइंट्स दे फिल कीते साडे को की आ गया z दी वैल्यू तो की करना सी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज maximize. So maximize z is equal to 20 lakh where x1 is 4 and x2 is 0 means 4 एड्स करो टीवी ते रेडियो ते कोई भी ऐड ना करो 20 लाख रीच हो जाऊगा ऑडियंस ठीक है सो की कहना maximize z is equal to 20 lakhs where x1 is 4 and x2 is 0 ठीक है yes or no कोई डाउट ठीक है साने क्लियर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਬੀਕਾਮ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਥਸ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਚ देखो सिमिलर क्वेश्चन है XYZ advertising agency has been asked to help a client to develop an advertising budget for the introduction of improved product. Advertising funds are to be spent on both TV and magazine announcements. Client has specified the following requirements. First point की क्या? No more than rupees 2 lakh is to be spent on TV ad. 2 lakh तो ज़्यादा TV ते खर्चना नहीं है. TV ad ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ X1. X1 किन्ने ads करने? ਉਹਦੇ ਲਈ एक्सपेंस सोचना पैना वो नीचे जाके हले सेकंड पॉइंट थर्ड तो बहुत समझ आऊगा सेकंड पॉइंट की कह रहे हैं एटलीस्ट 1 लाख रुपीज मस्ट बी स्पेंट ऑन मैगजीन अनाउंसमेंट ਹੁਣ थर्ड पॉइंट पढ़ो ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਾਸਟ 5000 ਇਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ 2000 ਇਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਡ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟੀਵੀ ਤੇ 5000 ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਡਸ ਕਿੰਨੇ ਸੋਚੇ ਆਪਾਂ x1 ਸੋ 5000 x1 ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਦਾ 5000 x1 और उन्होंने क्या मैक्सिमम कितना खर्चना 2 लाख सो 5000 x1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 लाख और जीरोस कैंसिल आउट करके कट शॉर्ट कर सकते इक्वेशन को दूजी इक्वेशन की आ रही उन्हें कैसी एटलीस्ट 1 लाख कितने लगाना मैगजीन तो और मैगजीन दी क्या ऐड दा खर्चा 2000 सो 2000 x2 एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख दो इक्वेशंस आ गई ठीक है इतने तक हो गया थोड़े को थर्ड किया उन्हें टोटल फंड्स कितने सर को देखिए बाकी टोटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड 5 लाख ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ 5000 x1 2000 x2 should be less than equal to 5 lakh कोई डाउट्स इन कंस्ट्रेंट्स पिछले नालों इजी क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट पढ़िए के अंदर रिसर्च स्टडीज तो की समझ आता है एजेंसी हैज डिटरमाइंड दैट 300 people are exposed to message for each rupee spent on television and 200 people are exposed to each message for to a message for each rupee spent on magazine 300 ਬੰਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ 200 so 300 into x1 and 200 into x2 ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ मैक्सिमाइज ठीक है determine the amount to be spent on television and magazine advertisement to maximize the total number of people exposed to the new product announcement only prepare LP model and do not solve solving नहीं पूछी करना चाहिए तो कर भी सकते हैं अच्छा एक चीज और उन्हें क्या 1 रुपये अगर स्पेंड करते टीवी थे उन्हें 300 बंदे मिल जाते 300 पर्सनस अट्रैक्ट हो जाते हैं तो तुसी की क्या x1 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ amount of expenditure on TV yes or no ਤਾਂ किन्ने बंदे आ जाओगे 300 into x1 समझे आ कंस्ट्रेंट क्लियर होगी मैक्सिमाइजिंग क्लियर हो गया सारा कितना बनया सो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट नाल लगा के क्लियर क्लियर है जा एग्जांपल 5 ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ 4th ਸੈਮ ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਰ ਆ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 4th ਸੈਮ ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਕਰਵਾਨਾ ਇਹ OR ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ सेम क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन पेपर भी पे आया ध्यान सुनो किया द मैनेजर ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी ताही क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं जेडी मर्जी बुक दे आ दोनों क्लासेस में जरूरी द मैनेजर ऑफ एन ऑयल रिफाइनरी मस्ट डिसाइड ऑन द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ टू पॉसिबल ब्लेंडिंग प्रोसेसेस अरे सुन ला राजा ये डेरिवेशन ध्यान ना ऑफ विच द इनपुट्स एंड आउटपुट्स पर प्रोडक्शन रन आर एज फॉलोज ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਇਨਪੁट्स एंड आउटपुट दोनों दसते इनपुट की है क्रूड ए एंड क्रूड बी आउटपुट की मिल रहा गैसोलीन एक्स एंड गैसोलीन वाई कहते मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ए एंड बी अवेलेबिलिटी लेस देन इक्वल टू
अवेलेबिलिटी मींस लेस देन इक्वल टू लगदा ओके एंड मार्केट रिक्वायरमेंट शोज दैट एटलीस्ट ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ आता है फिनिश गुड्स ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 150 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਗੈਸੋਲੀਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ ਔਰ 130 ਯੂਨਿਟਸ ਗੈਸੋਲੀਨ ਵਾਈ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੱਗੂਗਾ प्रॉफिट पर प्रोडक्शन रन फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड 2 ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇਤੇ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਕਿਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕੁਐਸਚਨ प्रॉफिट किधर गिवन है प्रोसेस 1 एंड 2 मतलब प्रोसेस 1 एंड 2 नो x1 x2 लोगे या xy लोगे जो भी सो प्रॉफिट कितना 40 एंड 50 मैक्सिमाइज दैट इज इक्वल टू 40x प्लस 50y आ गया मैक्सिमाइजिंग फंक्शन इतना ही हुन इनपुट्स दा कंस्ट्रेंट किया 6x प्लस 5y अवेलेबिलिटी सी 250 यस और नो तो लेस देन इक्वल टू 250 इतना ही सेकंड ते भी लगाओ 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 200 कि दो कंस्ट्रेंट समझ आ गया उन्हीं दे आउटपुट ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੋ ਕੀ ਆਇਆ 6x 5y ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 150 ਐਂਡ 9x 5y ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 130 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਬਣੇ ਨॉन ਨੈਗੇਟਿविटी ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆਣਾ ਐਂਡ क्वेश्चन डन और ये ग्राफिकली सॉल्व भी हो सकता अगर पूछे तो समझ रहे गल एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पिछले ओआर ਦੇ पेपर 'ਚ ਆ क्वेश्चन पाया गया एज इट इज जबकि ओआर वाली बुक 'ਚ नहीं है कितने पे आया बीकॉम फोर्थ सेम ਦੀ बुक 'ਚ पे आया ਉਹ ਚੋਂ करवाया मैं पिछले साल भी